Assalamu alaikum everyone. This is your course in charge, Dr. Nikhil Server. Today I would like to start my another session about course Introduction to Mass Communication. In this session, we will discuss newspaper content. As you all know, newspaper contain a variety of information, most of which is not news. The information falls into 5 broad categories, and today we will discuss these 5 broad categories, which are advertising, opinion material, news, graphics, and photojournalism. Each category has several subcategories. Remember, 5 broad categories of newspaper content: advertising, opinion material, news, graphics, and photojournalism. Now, come to first category, which is advertising. Advertising includes 3 major types, which are classified ads, display ads, and inserts. Classified ads. What do you mean by classified ads? Classified advertisement are the list of ad set in a small type that advertise about jobs, items for sale, and many more. Classified ads are mostly comes in daily basis. Now come to second type of advertisement, which is display advertisement. Display advertisement found throughout the newspaper. Example of display advertisement are incorporate photographs, drawings, and large types. For example, any movie, any new movie in theaters. Many newspapers carried large display ads for the film, theaters, shows. So this is the type of display advertisement. Now third type is insert. First type is classified advertisement, second display advertisement, and third is the insert. Insert means inserts which are similar to a small catalog. Most often advertise merchandise for sale at department stores and supermarkets. These advertisement comes in the form of insert. So there are 3 type of advertisement: classified, display, and insert. Classified, the best example of classified is about Dawn newspaper. डॉन न्यूज में आप देखिएगा सैटरडे संडे स्पेशली संडे डॉन न्यूज में आप क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत सारे टाइप्स में नजर आएगा. देन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट थ्रू आउट द पेपर आपको ये मिलेगा और लार्ज होता है ये इन साइज और नॉर्मली एनी अपकमिंग मूवी थिएटर सॉर्ट ऑफ इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले एड्स. देन कम टू इंसर्ट्स. ठीक है, स्मॉल कैटलॉग होती है जो अक्सर आपको मर्चेंडाइज के लिए फॉर सुपरमार्केट, डिपार्टमेंट स्टोर, सेल, उनकी कोई नई सेल आ रही होती है उसमें होता है, या बाज़ दफ़ा स्कूल्स, ठीक है, स्कूल्स ओपन करते हैं तो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ इंसर्ट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के साथ वो हॉकर्स जो हैं आप तक वो पहुंचाते हैं.
ठीक है। बेसिकली ये बहुत बड़ा पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का न्यूज़पेपर कंटेंट में। किसी भी न्यूज़पेपर को रन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जो है जो इससे डेफिनेटली एक रेवेन्यू पैसे जनरेट होते हैं जो आपकी रन करने के लिए आपके न्यूज़पेपर को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। कुछ गवर्नमेंट एड्स होते हैं जिनके बगैर डेफिनेटली अखबारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अगर एड्स जो हैं रोक लिए जाएं या नहीं दिए जाएं तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है। देन कम टू सेकंड, ओपिनियन मटेरियल। ओपिनियन पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, ओपिनियन मटेरियल. Opinion appears on the editorial pages and OPED, which is short form of opposite the editorial pages. On these pages, editorial writers, political writers and local citizens express their opinion about current political and social issues. These pages make up the heart of the marketplace of ideas. Editorial page पे आप देखें, I've seen a lot of ideas in the form of editorial opinion. ठीक है। Basically ये जो होते हैं these are opinion related to your organization, related personal opinion in the form of editorial columns. ये मोस्टली होते हैं आपके एडिटोरियल पेजेस पे. एडिटोरियल पेजेस आर वेरी इम्पोर्टेंट. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं एडिटोरियल में, ठीक है, जो जिससे आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी नजर आती है. बेसिकली एडिटोरियल पेजेस पे क्या होता है, कौन कौन से कंटेंट एडिटोरियल पेजेस पे आ रहे होते हैं. एडिटोरियल पेजेस पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट है इज नोन एज एडिटोरियल. देन सेकंड टाइप इज अबाउट कॉलम. ठीक है, एडिटोरियल पेजेस पे आप एडिटोरियल कॉलम एंड लेटर्स टू द एडिटर एंड एडिटोरियल कार्टून, ठीक है, ये आपको एडिटोरियल पेजेस पे नजर आते हैं, जिससे आपको यू हैव टू नो अबाउट द करंट सिचुएशन, जिसमें आपको ओपिनियन मिलता है, जजमेंट मिलती है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक ओपिनियन. ठीक है, एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए आपको एडिटोरियल पेजेस पे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलता है, ठीक है, जो एक लेमैन पर्सन के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि वो इस कंटेंट को पढ़ के एक किसी भी इशू से रिलेटेड अपनी राय बनाता है. ठीक है, बेसिकली एडिटोरियल कैन डिस्कस अ सिचुएशन एंड चैलेंज रीडर्स work out their own solutions. The most important element of an editorial is effectiveness. If an editorial is not effective, it will not fulfill its purpose. Because people want news, effective editorial should be timely as well as interesting. An editorial is still a kind of news, even though it is written and presented from a viewpoint different from that of straight news stories. Editorial reflect the views of news writer. Editorial is interpretation of event. The primary purpose of an editorial is to convince. A good editorial convince its reader about any situation, about any issue. The mark of a truly successful editorial is its ability to arouse readers to take action on the issue dealt with in the editorial. The writer of an editorial can be said, and he has to be saying, here is the evidence, the verdict should be as I have indicated. ठीक है, उसका एविडेंस वो दे सकता है, वो जो अपनी राय देता है, ठीक है, वो जो भी वर्डिक्ट फैसला दे रहा होता है, ठीक है, वो उसके बहुत जल्द
आप देख रहे होते हैं रिजल्ट भी आ जाते हैं, बिकॉज एडिटोरियल राइटिंग is related to most elder senior person of the newspaper. ठीक है, mostly ये जो editorials लिख रहे होते हैं या तो editor is responsible for writing editorial or the most senior person is responsible to write an editorial. So that's why editorial must be convincing. To be convincing, the writer must thoroughly understand the situation or the problem. The editorial must reflect the writer's belief in a particular point of view. There are three types of editorial. The first editorial is known as the leading editorial or leader, Leader, and another editorials are known as editorial note. This is about editorial. This which is very important content of opinion pages. The next important content of opinion pages is column, which is personalized. Column को एक writer लिख रहा होता है, with byline आ रहा होता है, with the name and the picture of the writer about any current issues. Then letters to the editorial written by unknown persons. Anyone can write in the form of letters about your reservations, about your problems, and then editorial cartoon. एडिटोरियल कार्टून करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और आपको करंट सिचुएशन से रिलेटेड चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं. Okay, after opinion pages, the next and the most important part, most important content of the newspaper is news. News, something different, something unusual is known as the news. The bulk of non-advertising information is known as news. There are several types of news. News can be hard, news can be soft, or news can be deep or in-depth. News includes features, current events, investigative series. Newspapers tend to emphasize local news. Proximity is important. Proximity is important for most staff prepared news. Hard news. What do you mean by hard news? Hard news are timely stories with significance for many people. And soft news are features that rely on human interest for their news value. So news are the most important content of the newspaper. There are different types, beats of the news. We subdivide news in different beats like educational news, news related to finance, sports, culture news, news related to health, crime. These are the different beats of news. Mostly political news. आप देख रहे होते हैं फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर पे जो मोस्टली न्यूज़ आ रही होती है रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़. पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती है, सोशल न्यूज़ होती है, न्यूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट. लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आजकल जो ट्रेंड है रिलेटेड टू न्यूज़पेपर्स, आप सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ देख रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अगर आप काम करने बैठे तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही आपको न्यूज़ मिलेगी. ठीक है, जो सबसे कम जो हमारे यहाँ रेशियो है इज अबाउट द न्यूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट. ठीक है, बास न्यूज़पेपर्स में तो डेवलपमेंट की न्यूज़ के लिए कोई पेजेस नहीं होते हैं, अक्सर जो है एजुकेशन ही उसमें डेवलपमेंट न्यूज़ आ जाती है. सो देयर आर डिफरेंट बीट्स ऑफ न्यूज़. ठीक है, न्यूज़ जो है सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया पॉलिटिकल आती है, लेकिन इसके अलावा सारी जो न्यूज़ की टाइप्स हैं, डिफरेंट न्यूज़ होती है, डिफरेंट बीट्स होती है और डिफरेंट ही रिपोर्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बीट्स.
ठीक है, पहले ये होता था कि एक ही रिपोर्टर डिफरेंट न्यूज लेकर आया करता था, बट अब जो है डिफरेंट बीट्स हो गई हैं। जो एजुकेशनल रिपोर्टर है ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल रिपोर्टिंग एंड एजुकेशनल न्यूज कवरिंग। इसी तरह इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, तो आपको जो है रिपोर्टर के लिए हर फील्ड में जो है एक अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसके पास हो। तो दिस इज अबाउट न्यूज। Then come to next, graphics. न्यूज इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई, कंटेंट हो गया न्यूज़पेपर का। ऑलवेज रिमेंबर न्यूज़पेपर कंटेंट, ये कंटेंट है जो किसी भी न्यूज़पेपर में आ रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर जो है न्यूज के लिए बना है, इंफॉर्मेशन के लिए बना है। द बेसिक फंक्शन ऑफ communication, mass communication is to inform, to educate, to entertain and to interpret. So information is the first basic function which comes in the form of news. ठीक है, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको डेफिनेटली सर्वाइवल के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट पे भी आपको इन्हिसार करना पड़ता है, यू डिपेंड करना पड़ता है। तो मोस्टली न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। पास न्यूज़पेपर्स तो ऐसे होते हैं जो स्पेशली संडे को आप देखते हैं कि उसमें न्यूज़ कंटेंट कम होता है और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस वजह से होते हैं कि संडे जो है एक लेजर टाइम लोगों के पास होता है, लोग क्लासिफाइड पेजेस पे जा रहे होते हैं। क्लासिफाइड में मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ आपको डिफरेंट जो है वो एड्स मिल रहे होते हैं फॉर सेल है, रेंट अ कार, हाउस और सर्विसेज। तो क्लासिफाइड इज वेरी पॉपुलर स्पेशली फॉर संडेज न्यूज़पेपर। तो ये सारी चीजें आपको जो है न्यूज़पेपर से मिल रही होती हैं। Then come to next, which is next content, which is graphics. The term graphics covers a range of newspaper content, from the information graphics that present data in table and graphs to comics and political cartoons. ठीक है, ये सारी चीजें जो आती हैं आपकी ग्राफिक्स में आ जाती हैं। न्यूज़पेपर कंटेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्राफिक्स के बगैर भी, क्योंकि इस वक्त डिजिटल एज है, ज़माना बहुत डिफरेंट हो गया है। तो सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है, लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है। और न्यूज़पेपर्स को अपनी सर्वाइवल के लिए डेफिनेटली इस वक्त जो है बहुत कंपटीशन है। आपको पता है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया बहुत कंपटीशन में है। तो इस सर्वाइवल के लिए बहुत सी ऐसी चीजें ऐसी जो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स जो है वो भी न्यूज़पेपर में आती हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोलिटिकल कार्टून्स। ठीक है, टेबल ग्राफ्स। और आप फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के पेजेस पे आए तो आपको ग्राफ्स, डाटा, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये सारी जो है टाइप्स हैं ग्राफिक्स के। न्यूज़पेपर हैव इंक्लूडेड ग्राफिक्स फॉर मोर देन 2 centuries, starting with political cartoons before the American Revolution. Currently, newspapers use graphics extensively to create visual interest and to communicate complex idea and data. ठीक है, टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड डाटा। ठीक है, कोई ऐसी फाइनेंस या कॉमर्स से रिलेटेड चीज आती है तो वो सिर्फ आपको इन वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूज नहीं दिखाई जाती है, बताई जाती है। आपके लिए उसमें डाटा भी होता है, कैलकुलेशन भी होती है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है अब इस तरह की न्यूज़ नहीं आती है। ठीक है, तो जहाँ भी है आपको जो भी उसको दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, चाहे पेंडेमिक है उससे रिलेटेड आपने अब रिजल्ट्स देनी है, प्रीवियसली उसको जज करना है, इन फ्यूचर देखना है, व्हाटएवर, तो आपने इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स चीज़ें देनी होती हैं। According to the Newspaper Association of America, more than 70 million people in the United States read newspaper comics and look at political cartoons every day. ठीक है, ये जाहिर है कि अमेरिका की जो भी आपको एग्जाम्पल दी जाती है, बिकॉज ये बुक्स जो होती हैं अमेरिकन ही होती हैं, तो अमेरिकन ही मिसाल दी जाती है। और इसलिए भी कि न्यूज़पेपर डेफिनेटली एक लिटरेट और इलिटरेट वाला जो कंसेप्ट है वो ज़रूर आ जाता है। इसके लिए जाहिर है कि न्यूज़पेपर जो है हर जगह नहीं पढ़ा जाता है।
तो लिटरेसी रेट जहाँ ज़्यादा होता है डेफिनेटली वहाँ लोग पढ़ने का रुझान ज़्यादा होता है, वहाँ पे ही इस तरह के सर्वे भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्वे है जो न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने किया था कि मोर देन 70 मिलियन पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स रीड न्यूज़पेपर कॉमिक्स एंड लुक एट पोलिटिकल कार्टून्स एवरी डे। ये हमारे यहाँ जो पोलिटिकल कार्टून्स हैं वेरी इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आते हैं। वैसे तो सारे ही न्यूज़पेपर आई थिंक अच्छे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इसको ज़रूर दे रहे होते हैं। ठीक है, मोस्टली कार्टून ज़्यादातर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में नज़र आएंगे, ऑल्दो के उर्दू न्यूज़पेपर्स में होते हैं, बट इसका जो रेशियो है इंग्लिश न्यूज़पेपर में ज़्यादा होता है। स्पेशली डॉन न्यूज़पेपर के कार्टून्स देखा करें, आप पढ़ें, उसको देखें, वो करंट डेली बेसिस पर आ रहे होते हैं और रिलेटेड टू योर करंट सिचुएशन। ठीक है, तो कार्टून की अपनी लैंग्वेज होती है, बाज़ दफ़ा कोई कैप्शन नहीं होता है, विदाउट कैप्शन भी वो करंट सिचुएशन पे बहुत कुछ कह जाते हैं, और जहाँ पे आपकी पॉलिसी, ठीक है, आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, आप इन द फॉर्म ऑफ कार्टून्स, पॉलिटिकल कार्टून्स बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डेफिनेटली इसके लिए आपका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, जो इस कॉन्टेक्स्ट को समझ जाता है उसके लिए कार्टून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Then comics provide entertainment and a light look at some of people's problem. Political cartoons comment on political, social and cultural events and the people who influence those events. नॉर्मली जो पॉलिटिकल कार्टून्स होते हैं वो उनकी जो कमेंट्स होती है, नॉर्मली जो ज्यादा आप रेशियो अगर देखें, आप एक हफ्ते के भी न्यूज़पेपर उठा के देखें तो सबसे ज्यादा आपको उसमें इन्होंने इसमें 3 चीजें बताई हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स। तो कल्चरल इवेंट्स तो हमारे यहाँ इतने ज्यादा नहीं कवर होते हैं, बट मोस्टली जो कवर होता है वो पॉलिटिकल इश्यूज ही होते हैं। ठीक है, तो रेशियो जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स होता है, ये तो ओवरऑल एक बात की जा रही है जो वर्ल्ड की है। ठीक है, जो बेसिकली कार्टून्स आते हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स पे और कुछ ऐसे लोगों पे वो इन्फ्लुएंस दोस इवेंट्स। ठीक है, तो उसमें कौन सा जो पॉलिटिकल, बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े कोई पॉलिसी होती है या उनके रिलेटेड कोई भी सेइंग्स होती है, तो उससे रिलेटेड जो है जरूर आ रहा होता है, आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप इन द फॉर्म ऑफ कार्टून दे देते हैं। Comics appeal to the consumer market. Political cartoons contribute to the marketplace of ideas. The difference between the two is not always obvious because some comics aimed at entertaining. ठीक है, कॉमिक्स भी आपको इन द फॉर्म ऑफ कार्टून ही नजर आ रहा होता है। ठीक है, बाज जो होते हैं, जो कॉमिक्स होते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट होते हैं। ठीक है, और बाद इसमें भी कुछ ना कुछ मैसेज दिया जाता है। ठीक है, बट हमारे यहाँ जो रेशियो है कॉमिक्स का इतना ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में तो फिर भी है, मेरे ख्याल में उर्दू में बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पे इतना जोर नहीं दिया जाता है जितना, वो पॉलिटिकल कार्टून्स भी आपको ज़्यादा जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में ही नज़र आएंगे। Any newspaper editor can explain the importance of a comic sections to readers. About 95% of all daily newspapers carry a separate and identifiable comic section on Sunday. ठीक है, कॉमिक्स, ठीक है, बहुत कॉमिक्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स कॉमिक्स आ रहे होते हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो कॉमिक्स होते हैं वो संडे न्यूज़पेपर्स में आते हैं। ठीक है, कुछ उर्दू न्यूज़पेपर भी इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक्स चीज़ें दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्राफिक्स में और भी चीज़ें आ जाती हैं। ग्राफिक्स में जो है आप देखेंगे कि एक संडे न्यूज़पेपर अगर आप उठाएं डॉन का, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी चीज़ें आ रही होती हैं जो आपकी न्यूज़, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट से हटके होती हैं। ठीक है, कुछ गेम्स होते हैं ऐसे जो इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैबल, ठीक है, इस तरह के गेम्स होते हैं जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, फिर हॉरोस्कोप होते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी न्यूज़पेपर में दी जाती हैं। ठीक है, जो न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट से हटकर हों। ठीक है, तो बात मैं इसकी कर रही थी कॉमिक्स की। ठीक है, उर्दू न्यूज़पेपर में भी कॉमिक्स दिए जाते हैं, बट इंग्लिश न्यूज़पेपर में एज कंपेयर टू इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़्यादा कॉमिक्स देने का जो है एक ट्रेंड है।
ठीक है। उर्दू न्यूज़पेपर में एक टार्जन से रिलेटेड आता था इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक्स, जिसमें ग्राफिक्स डिजाइन के साथ साथ कुछ स्टोरी भी दे रहे होते थे। तो वो टार्जन, ठीक है, एक ज़माने में जंग में आया करता था, जो बहुत मशहूर भी होता था, लोगों में पसंद किया जाता था। ठीक है, तो ये फिर बात आ रही है कॉमिक्स पे, जो संडे न्यूज़पेपर्स में जो है ज़्यादा जो है नॉर्मली इसका देने का। और संडे न्यूज़पेपर में नॉर्मली चीज़ें क्यों आती है, क्लासिफाइड एड्स भी आप देखेंगे जितने ज़्यादा संडे न्यूज़पेपर में आते हैं इतने ज़्यादा डेली बेसिस पे नहीं आते, क्योंकि संडे न्यूज़पेपर जो है वो एक लेजर टाइम, संडे छुट्टी का दिन है, हर किसी को छुट्टी के दिन में जो है चीज़ें, ठीक है, क्लासिफाइड में आप देखते हैं सेल से रिलेटेड होती है, तो बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है, ट्विटर से लेके ब्यूटिशियन और हर चीज़, ठीक है, आपको इस तरह की जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आ रहे होते हैं। जो स्पेशली लोग अगर फॉर एग्जांपल रेंट अ कार, रेंट अ हाउस, ये भी संडे के न्यूज़पेपर बाकायदा खरीद रहे होते हैं। ठीक है, आज के दौर में भी लोग खरीद के इस वक्त जो है ये जो है इस तरह के कामों को के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फिर हम इस पर आते हैं। मोर द एनी न्यूज़पेपर एडिटर कैन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉमिक सेक्शन टू रीडर्स। अबाउट 95% ऑफ ऑल डेली न्यूज़पेपर carry a separate and identifiable comic section on Sunday. More people read comics regularly than read sports, editorials, letters to the editor, food pages, and in-depth investigative reports. ठीक है, कॉमिक्स में लोगों का ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा शौक से पढ़ा जाता है। और क्यों? क्योंकि ज़ाहिर एक हल्की फुल्की चीज़ है जो आपको इंटरटेनमेंट के साथ दी जा रही है। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे एडिटोरियल से या कॉलम से, तो वो जो है वो उसके लिए एक अलग ही, ठीक है, एक अलग लिटरेट एलिट्स का एक वो होता है रुझान, जो लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसकी जो पढ़ने वाले होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू दीज। The use of information graphics boomed in the late 1980s and became a newspaper mainstay because of offset printing, the use of computers, and the development of new technology. Information graphics such as tables, maps, and graphs have become so important that the number of the newspaper graphic artist and the designer has grown significantly. ठीक है, अब ये जो अखबार में चीज़ें आ रही हैं ऑफसेट प्रिंटिंग, ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो है प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है और बहुत तेज़ी से, बहुत क्विकली होने लगी है। एक तो ये आसानी हो गई है, दूसरे आप जो अखबार में देखेंगे टेबल्स, मैप्स, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, पहले तो ये सिर्फ जो है आर्टिस्ट और डिज़ाइनर, ठीक है, अभी भी करते हैं, बट अभी आपके पास ये जो है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन चीज़ों ने और भी आसान बना दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं अब ज़्यादा ग्रोन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसका रुझान हो गया है। Most important news stories have a designer who packaged the story, and the nature and the extent of graphics and photographs available to tell the story can affect the location of the story. तो जो भी एक स्टोरी के लिए भी, ठीक है, आपको ये जो है डिज़ाइनर और ये ग्राफिक्स, ठीक है, इसको यूज़ करना होता है। कोई भी आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल दे रहे हैं रिलेटेड टू एनी इम्पोर्टेंट इशू, तो फिर आपने ये न्यूज़पेपर में ज़रूर इन चीज़ों को यूज़ करना होता है। ठीक है, अपने टेबल्स, मैप्स, ग्राफ्स, इन चीज़ों को यूज़ करना होता है। दिस इज अबाउट द ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए। तो अब कितनी चीज़ें हमने अभी कवर कर ली हैं। पहला हमारा हो गया है एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ी है, क्लासिफाइड एड, डिस्प्ले एड एंड इंसर्ट्स। सेकंड हमारा था अबाउट ओपिनियन पेजेस। ओपिनियन पेजेस का मैंने आपको बता दिया है, ओपिनियन पेजेस भी किसी भी न्यूज़पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपके ओपिनियन पेजेस में एडिटोरियल कॉलम, लेटर्स टू दी एडिटर एंड एडिटोरियल कार्टून आ जाते हैं। ठीक है, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है आपके न्यूज़पेपर का। देन कम टू न्यूज़। न्यूज़ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स बता दिए मैंने आपको, हॉट न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़, इन डेप्थ न्यूज़ होती है जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से रिलेटेड होती है, और इसके अलावा डिफरेंट न्यूज़ बीट्स होती हैं
जिसमें हम न्यूज़ को सब डिविजन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बीट। देन ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफिक्स के बगैर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलेंगी। कार्टून्स जिसमें एडिटोरियल कार्टून बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक्स आपको मिलेंगे, टेबल, मैप, these are the forms of graphics. Then come to last content of the newspaper, which is photojournalism. ठीक है, फोटो जर्नलिज्म आज के दौर में कोई भी चीज़, ठीक है, बताने के लिए डेफिनेटली आपको पिक्चर्स देनी पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी चीज़ें भी लाइक सिर्फ न्यूज़ लोगों का इंटरेस्ट, ठीक है, आपने आपके पास आपको पता है कि इस वक्त कितना मीडिया कितना पावरफुल हो चुका है और एक जो है यहाँ पे एक दौड़ लगी हुई एक दूसरे से आगे बढ़ने में। तो ट्रेडिशनल मीडिया को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइविंग के लिए उसके बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट चीज़ों को वो लेके चले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया उसने बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है कैप्चर कर ली है अपने ऑडियंस की, रीडर्स की, लिसनर्स की, ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं, ठीक है, अब बहुत दुनिया आगे निकल चुकी है। तो डेफिनेटली जब ये आप ऐसा नहीं है, और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, अखबार की अहमियत ख़त्म कभी भी नहीं होगी, डेफिनेटली उसके पढ़ने वाले भी अपनी जगह है, लेकिन हाँ हर चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ रुझान कम हो जाता है, ठीक है। अब ये है कि लोग हार्ड कॉपी नहीं पढ़ रहे होते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन न्यूज़पेपर, डिजिटल फॉर्म में अब लोगों के सामने न्यूज़पेपर होता है, तो ज़ाहिर चीज़ें तो उसमें भी होती हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फोटो जर्नलिज्म, ठीक है, तस्वीरों के बगैर, ठीक है, बहुत तस्वीरें क्या करती हैं, आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर रही होती हैं। आप बाज़ दफ़ा जो है तस्वीरें इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं सिर्फ जो है तस्वीरें देख के। तो फोटो जर्नलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो जर्नलिज्म विच इंटीग्रेट्स वर्ड्स एंड फोटोग्राफ्स, ठीक है, बाज़ तस्वीरें जो होती हैं वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ आती हैं और फिर उसकी फोटोग्राफ्स होती हैं, ठीक है, तो दोनों चीज़ें मिलके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका रीडर पे। लेकिन बाज़ दफ़ा फोटो जर्नलिज्म विदाउट न्यूज़ भी आ रही होती है, सिर्फ न्यूज़ आपके पास एक पिक्चर आ जाएगी विद कैप्शन, ठीक है, रिलेटेड टू एनी न्यू ट्रेंड, कोई नया सीजन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप विंटर आने वाले हैं तो विंटर से रिलेटेड कोई जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ रहा है, विंटर आप किस तरह बताएंगे कि विंटर आ रहा है, तो विंटर से रिलेटेड, ठीक है, विंटर में आप देखिएगा अखबार उठाइएगा कि ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट से रिलेटेड कोई ना कोई पिक्चर जरूर आती होती है और जिसमें कैप्शन लगा होता है, ठीक है, तो वो पता चल जाता है कि विंटर आ गया है और ड्राई फ्रूट्स मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ अर्से बाद आप देखिएगा कुछ समर वेकेशंस होती हैं, उसके बाद स्कूल खुलते हैं, तो उससे रिलेटेड ज़रूरी नहीं है न्यूज़ आए, न्यूज़ भी आती है, छोटी सी आ सकती है, बट अगर सिर्फ एक तस्वीर आ जाए, पिक्चर आ जाए, उसके नीचे कैप्शन हो कि बैक टू स्कूल, तो वो समझ आ जाता है। तो मतलब बाज़ दफ़ा ये, और फोटो जर्नलिज्म इसलिए भी ज़रूरी है, ठीक है, बाज़ दफ़ा इवेंट ऐसा होता है, मिसहैप ऐसा होता है कि आप इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं, बट ज़ाहिर है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत कुछ दिखा सकता है, ठीक है, इमेजेस के ज़रिए वो बहुत कुछ दिखाता है, और लेकिन अखबारों में कैसे होगा, डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स जो होते हैं डिफरेंट पिक्चर्स के ज़रिए, फ़ोटो के ज़रिए आपको जो है इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं। सो फोटो जर्नलिज्म integrates photos and photographs, attempt to explain people's behavior and the nature of the world. Attempt to explain people's behavior and the nature of the world. People's behavior आपको नजर आएंगे, आप अखबार उठा लें, अपने लोकल ही कोई न्यूज़पेपर उठा लें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहेवियर दिखा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ठीक है, असेंबली में जो कुछ हो रहा है, कोई भी हो गई है, कोई क्लैश हो गया है, कोई बड़ी ऐसी चीज़ हो गई है, तो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर वो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जो रिलेटेड टू नेचर है या नेचर से हट के है, ठीक है, जैसे गर्मियों में थोड़ी बहुत कहीं बहुत ज़्यादा कोई बर्फबारी हो गई किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ गर्मियों में नहीं होती है,
ठीक है। तो वो नेचर ऑफ द वर्ल्ड वो आपको जरूर इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स आएंगी। ठीक है। रेन होती है, बारिश होती है, उससे रिलेटेड पिक्चर जरूर आती हैं। बारिश के बाद जो डिजास्टर हो रहा होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इन द फॉर्म ऑफ न्यूज ही दिया जाए, वो पिक्चर्स के जरिए भी आपको वो डिजास्टर्स दिखा रहे होते हैं। कोई प्रोटेस्ट होता है, नेक्स्ट डे आप जरूर देखेंगे कि उसकी पिक्चर जरूर आती है। ठीक है। तो क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट ज़माना है, लोग न्यूज़ पढ़ने, हर कोई न्यूज़ पढ़ने नहीं बैठता है, तो ये जो है बहुत इफेक्टिव मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। लोग पिक्चर देख के उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं और वो फिर वो पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है न्यूज़। Effective photojournalism involves skilled editing and assume that informing the public essential. ठीक है। Basically, what is the role of photojournalism? Photojournalism just inform the public. ठीक है। आपने पब्लिक को इन्फॉर्म करना होता है अबाउट एनी करंट सिचुएशन, अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट द पीपल्स बिहेवियर। ठीक है। ये इसका एम है। और फोटो जर्नलिज्म मीन्स कि आप कुछ अनयूजुअल थिंग जो हो रही है रिलेटेड टू योर वर्ल्ड, रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट, वो आप लेकर आ रहे हैं। ठीक है। बेसिकली फोटो जर्नलिज्म कुछ आपको अलग चीज, ठीक है, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट जो है आपके सामने लेकर आ रही है। Photojournalism is a type of journalism in which written text is secondary and photographs is more important. ठीक है। टेक्स्ट नहीं भी होता है बाज दफा, ठीक है, तो आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स। Photojournalism is capable of powerfully affecting an audience interpretation of an event and often define public memory. ठीक है। अब फोटोजर्नलिज्म क्या करती है? इंटरप्रिटेशन करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट, ऑफ एनी मिसहैप, ऑफ एनी इशू रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट, रिलेटेड टू योर कंट्री, इंटरनेशनली, लोकली, ग्लोबली, जो भी बड़े इवेंट होते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में जरूर पिक्चर्स आ रही होती हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लें, डॉन न्यूज़ देख लें, जंग न्यूज़ देख लें, आपको अगर आप रेशियो देखना चाहें फर्स्ट से लेके एंड पेज तक, ठीक है, आप काउंट कर लें कि कितनी स्टोरीज ऐसी हैं जो विद न्यूज़पेपर में पिक्चर्स के साथ आ रही हैं और कौन सी ऐसी स्टोरी होती हैं जो जस्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स आ रही होती हैं। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में कि स्पोर्ट्स की जो भी न्यूज होती है हमेशा जो अपकमिंग जो मैच हो रहा होता है, ठीक है, जो आप मैच करते हैं, विन करते हैं तो डेफिनेटली दूसरे दिन जरूर अखबार में उससे रिलेटेड न्यूज आती है। जो लोग स्पोर्ट्स मैन होते हैं, ठीक है, उनकी तस्वीर के साथ आती है। क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ, ठीक है, टॉस कर रहे हैं आप, उसकी आपके पास नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी। ठीक है। तो स्पोर्ट्स तो आपको पता है कि एक्शन, ठीक है, एक्शन के साथ आप उसमें पिक्चर्स दे रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्स पेज में तो जरूर देखिएगा कि कभी भी स्पोर्ट्स पेज में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ न्यूज आएगी और पिक्चर्स नहीं आएंगी, तो वहां भी बहुत सारे, उसके अलावा कोई भी अहम, ठीक है, कोई भी बड़ी मिसहैप होती है, इवेंट होता है, तो उससे रिलेटेड पिक्चर जरूर आती है। कोई भी बड़ा मिसहैप हो गया, लोगों की डेथ हो गई, तो नेक्स्ट डे आप देखिएगा कि जो है डेड बॉडीज की पिक्चर्स, और बड़ा अभी जैसे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ PIA का इतना बड़ा जो है वो हुआ है, क्रैश हुआ है, तो अखबार उठा के देख लें आप, कितनी पिक्चर्स आई थी उससे रिलेटेड, ठीक है, जो PIA की एयरक्राफ्ट से भी रिलेटेड थी और डिफरेंट लोगों की भी थी, ठीक है, जो इसमें जिनके बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है उनसे रिलेटेड भी थी। तो जो भी बड़ा इवेंट होता है तो उसमें जरूरी होता है कि फिर आपको इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स वो आप चीजें, इसी तरह 9/11 जो हुआ था उससे रिलेटेड आप अखबारों में अगर चेक करें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसमें आया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो भी हुआ था उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स दिया था। ठीक है। तो कोई भी बड़ा इवेंट मिसहैप हो जाए, ठीक है, आपके यहाँ कोई भी जलजला आ जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, तो इससे रिलेटेड जरूर पिक्चर जरूर आती है। मतलब फोटो जर्नलिज्म के बगैर भी कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता है। ये दोनों जो है साइड बाय साइड जो है साथ चल रही होती है।
Photojournalism may be more critical to society than other form of photography because its goal is to alter our vision of the world and it's mass distributed. Photojournalism opens up arenas of action and images that people would otherwise never see. ठीक है, इसके जरिए जो हम घर बैठे, ठीक है, घर बैठे ही अगर आपके पास अखबार आ जाता है तो आप वो चीज़ें देख ले होते हैं, ठीक है, जो आप जाहिर है कि हर मौके पे जाके आप पर्सनली उन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। कोई बड़ा मिसहैप हो, कोई बड़ी चीज़ हो, ठीक है, जैसे अब इमरान खान गए थे और नेशनल असेंबली में उन्होंने स्पीक की थी, स्पीकर एज ए स्पीकर, तो वो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर्स ने उसकी बहुत बड़ी कवरेज दी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो दे ही रहा होता है बट न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर। याद रखिएगा इसके मैंने इसकी 4 ब्रॉड कैटेगरीज दी हैं अबाउट द कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर। इनको याद करना है आपने, देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड जरा प्रैक्टिकली न्यूज़पेपर में भी सर्च कीजिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। ओके देन, अल्लाह हाफिज।